Hello students. In the previous class, we have discussed about periodic trends, correct? There are totally 7 periodic trends. We have written the list also. So what are those lists? That's the first one, atomic radius, ionic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, then metallic, non-metallic nature, and valency. 7 trends. And we have finished the 2 trends. One is atomic radius and second one is ionic radius. I hope all of you have revised that. So today we're going to continue the third trend, and that is the most important trend. So सभी ट्रेंड्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ट्रेंड है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस जो जेडब्ल्यू नीट में है वो भी इसी टॉपिक पे डिपेंडेंट होता है. So that is a very important and very big topic also, right? So I hope you don't have any disturbances. So ध्यान से सुनिएगा. Third trend, that is ionization enthalpy. Ionization enthalpy, or I said it is ionization potential, or it can also say ionization energy. So these all are the simple terms: ionization enthalpy, potential, or energy. Symbol generally we use del H I. So del H means enthalpy. Which enthalpy? Ionization enthalpy. That's why we can say del H I. So what is the meaning of ionization enthalpy? पहले बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, बाद में डेफिनेशन लिखेंगे. Ionization enthalpy means energy. Enthalpy means energy. Ionization means to make ion. To make ion. So it means you take any one element, let us say M. I don't take X because X in chemistry it is halogen. So M which is in a gaseous form. Now we have to remove one electron to make ion. Ion means generally cation की बात करते हैं, anion की नहीं. So electron remove करेंगे तो ही cation बनेगा. So एक metal है या एक element है, उस एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल दिया तो क्या बनेगा? M प्लस बनेगा गैसियस स्टेट वाला, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए. तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, और उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं. समझ में आपको? सो अब डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज the amount of energy required to remove one electron from a gaseous atom. So atom compulsory किस स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी जरूरत पड़ेगा, that energy is called as ionization energy. So definition, you can say that the amount of energy required, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा. amount of energy required to remove an electron from the valency shell of which one? Of isolated gaseous ground state atom
is called as ionization enthalpy. Right, understood the definition? The amount of energy required to remove an electron from the valency shell of isolated gaseous ground state atom. So example ये वाला आप लिख सकते हैं, एक एलिमेंट है, let us say M element, isolated. आइसोलेटेड मीन्स व्हाट, अकेला होना चाहिए, M के साथ N या O या X कुछ भी नहीं होना चाहिए, आइसोलेटेड स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, एंड एक्साइटेड स्टेट नहीं, मतलब पहले से उसको कुछ एनर्जी दिया हुआ नहीं होना चाहिए, कि ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए. सो ये 3 कंडीशंस फॉलो हो रहा है यहाँ पर. अकेला है और गैसियस स्टेट में है और ग्राउंड स्टेट में है, कि पहले से हमने कुछ एनर्जी दिया नहीं है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके M प्लस गैस बनाने का है, और उस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. राइट, अंडरस्टूड दिस वन? तो इसका यूनिट क्या होगा? द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी को हम IE लिखते हैं, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल को IP लिखेंगे, IP और IE, दैट इज एनर्जी निकाल रहे हैं, दैट मीन्स किलो जूल्स या जूल पर एटम की जगह पे पर मोल एक्सप्रेस करते हैं. पर मोल मीन्स 1 मोल के लिए कितना अमाउंट चाहिए. तो लेट अस से हियर 10 किलो जूल पर मोल या 20 किलो जूल पर मोल, लाइक दैट. सो द यूनिट ऑफ ionization energy or ionization potential is kilojoule per mole. So for example, somebody told me in examination the ionization potential of sodium is 520 kilojoule per mole. So for example, so किसी ने बोला इसका मीनिंग क्या होगा बताइए? It means सोडियम आइसोलेटेड होना चाहिए गैसियस ग्राउंड स्टेट में, और उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके क्या बनाना होगा? Na प्लस गैस, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए. इस प्रोसेस में आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना लगेगा? 520 किलो जूल लगेगा पर 1 मोल, पर 1 मोल. एक सोडियम के लिए नहीं, 1 मोल सोडियम एटम्स, 1 मोल यानी एवोगाड्रो नंबर जितना, तो उसमें 520 किलो जूल एनर्जी लगेगा. ये इसका मीनिंग है. अब सर यहां पर आपने ये जो वर्ड्स है आइसोलेटेड गैसियस ग्राउंड स्टेट लिखा है, इसका क्या जरूरत है, कि ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सो लेट अस सी दैट वन. सो इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म्स, importance of the terms. yes, कौन कौन सा टर्म्स यूज करा हमने? फर्स्ट वन, आइसोलेटेड स्टेट. आइसोलेटेड स्टेट मीन्स in a uncombined state, or you can say free state. suppose example हम सोडियम की बात करते हैं. सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, जिसे 9th क्लास में लिखते थे ऐसा. सो 1 शेल, 2 शेल्स एंड 3 शेल्स. आउटर शेल में यहाँ न्यूक्लियस है जिसके अंदर 11 प्रोटॉन्स है, और आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ सोडियम के बाजू में अगर क्लोरीन है, लेट अस से क्लोरीन हियर, सो ये क्लोरीन का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, और उसकी वजह से कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाइंड होने वाला एनर्जी वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. इट मींस हमें क्या चाहिए? एक्चुअली न्यूक्लियस कितना एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, तो हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए. बट अगर बाजू में क्लोरीन एटम हो तो क्या होगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में
वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगा, बिकॉज दिस क्लोरीन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन आउटसाइड, इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने को ट्राई करेगा, उसकी वजह से एक्चुअल एनर्जी वैल्यू मालूम नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो हमें क्या चाहिए? एक्चुअल एनर्जी, न्यूक्लियस कितना एनर्जी से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है। तो उसके लिए हमें कि बाजू में कोई भी दूसरा एटम नहीं होना चाहिए। क्लोरीन होगा तो अलग होगा, अगर बाजू में ऑक्सीजन है तो वो अलग एनर्जी से उसको खींचता है, बाजू में फ्लोरीन है तो वो अलग एनर्जी से खींचेगा। इट मींस करेक्ट इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो क्या करना होगा? You should always find the ionization potential value in isolated state. That is the importance of the term isolated state. जब भी IP measure करोगे, the atom should be in isolated state. तो उसमें लिखेंगे क्या है देखिएगा। So the amount of energy with which electron is bound to the nucleus, electron is bound to the nucleus depends on neighbor atom. In order to get correct ionization potential, atoms, it should be IP, it should be measured in isolated state. So इसलिए जब भी हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, हम कौन सा स्टेट यूज करते हैं? आइसोलेटेड स्टेट यूज करते हैं। So understood all of you? So actually the nucleus will hold the outer shell electron, correct? But the energy depends on the neighboring atom. अगर neighboring atom strong atom है तो वो क्या करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैसे ही अपने आप अट्रैक्ट करेगा। तो उसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंसी के बीच में अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएंगे। इट मींस आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि कितना एनर्जी से वो न्यूक्लियस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, राइट? सो ये पॉइंट है। इसलिए हमें जब भी आईपी मेजर करना है तो कौन सा स्टेट में मेजर करना होता है? आइसोलेटेड स्टेट में मेजर करना होगा। सो बाजू में कोई दूसरा एटम नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड वर्ड इज गैसियस स्टेट। सो गैसियस स्टेट क्यों है, सॉलिड स्टेट क्यों नहीं है? क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होगा? एक एटम दूसरा एटम बाजू बाजू में नजदीक होगा, तो अगेन वही प्रॉब्लम आएगा, एक एटम का इंफ्लुएंस दूसरा एटम में पड़ेगा। सपोज एग्जांपल सोडियम सॉलिड स्टेट अगर मैंने लिया है, सोडियम सॉलिड, तो उसमें क्या होगा? एक सोडियम एटम इधर है, दूसरा सोडियम एटम बाजू में होगा, तीसरा सोडियम एटम बाजू में होगा, तो इस एटम का इफेक्ट इसमें रहेगा, इस एटम का इफेक्ट इसमें। इट मींस नेबरिंग एटम का इफेक्ट होगा, उसकी वजह से हमें करेक्ट एनर्जी मालूम नहीं पड़ेगा कि न्यूक्लियस कितना एनर्जी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं। तो ये इफेक्ट मिनिमम कब होता है? गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में क्या होगा? एटम सभी दूर दूर होते हैं, तो उसकी वजह से एक एटम का इफेक्ट दूसरा एटम में बिल्कुल नहीं होगा। सो व्हेन वी मेजर द एक्सपेरिमेंट और व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट इन दैट कंडीशन, देन यू विल गेट मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ आईपी। इसलिए जब भी आईपी मेजर करना है तो कौन सा स्टेट में मेजर करना होगा? गैसियस स्टेट में, राइट? सो इसमें क्या लिखना होगा? द इफेक्ट ऑफ वन एटम, the effect of one atom
on the other, on the another is minimum, is minimum in gaseous state. Due to this, the correct ionization potential can be measured, so क्योंकि एक एटम का इफेक्ट दूसरा एटम में अगर आ जाएंगे, फिर एक्चुअल एनर्जी क्या है कि न्यूक्लियस और वैलेंसी के बीच में, वो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें ग्राउंड स्टेट, गैसियस स्टेट में ही आईपी मेजर करना होता है। एंड थर्ड वन इज ग्राउंड स्टेट। सो ये सारे कंडीशंस हैं। सी कोई भी नॉलेज सीखेंगे बट इसमें परफेक्ट वे में सीखना होता है। सो बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे बुक्स में इस पॉइंट को इग्नोर ही कर देते हैं कि भाई ये कंडीशंस क्या है। अगर किसी बंदे से जाके पूछोगे व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो बंदा बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी है। बट इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है कि एटम शुड बी आइसोलेटेड, इट शुड बी इन गैसियस कंडीशन एंड इट शुड बी इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का इंपॉर्टेंस क्या है? मान लो एटम है, एटम लेट अस टेक सोडियम, बार बार सोडियम की बात कर रहे हैं। यहां इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, आपने पहले से कुछ एनर्जी दे दिया है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेट अस से एक्स एनर्जी दे दिया, तो एटम एक्साइट हो गए। अब एक्साइट हो गए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हो एक्साइट होने के बाद, तो हमें एनर्जी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, कम जरूरत पड़ेगा, क्योंकि पहले से आपने एनर्जी सप्लाई कर चुके हैं। तो हमें करेक्ट एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी सप्लाई करने से पहले हमें आईपी मेजर करना होगा, विच मीन्स आईपी शुड बी मेजर्ड when the atom is in ground state condition or stable state. So उसमें क्या लिखेंगे here? Here ground state of any atom, ground state of any atom is more stable state in which electron is bound to the nucleus, electron is bound to the nucleus with maximum energy, with maximum energy. So in order to get correct IP, atom should be in, or it should be measured in ground state. Understood? So ground state of atom. So these are the definitions. अभी हमने IP के बारे में डिटेल डिस्कशन स्टार्ट नहीं करा है। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग। ये तो जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में थ्योरी के लिए, बाकी आपको जस्ट क्या है कि आईपी का मीनिंग होना चाहिए। आईपी मींस इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, आई कैन से द वर्ड आल्सो, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, which is required to remove electron from the valency shell of isolated gaseous ground state atom। मतलब एक एटम अकेला है और उसमें न्यूक्लियस के साथ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होगा, उसको बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। अगर आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में, तो आपको 3 कंडीशंस कंपलसरी मेंटेन करना होगा। एटम आइसोलेटेड स्टेट में होना चाहिए, यानी बाजू में दूसरा कोई एलिमेंट्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन कोई नहीं होना चाहिए।
सेकेंड ग्राउंड स्टेट, सॉरी गैसियस स्टेट, मींस खुद का एटम भी नहीं होना चाहिए बाजू में, कि सोडियम के बाजू में सोडियम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब भी क्या होगा, एक एटम का इन्फ्लुएंस दूसरा एटम में होगा. एंड थर्ड वन इज ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट इज द मोर स्टेबल स्टेट, तो वहां पर हमें मैक्सिमम एनर्जी मिल जाएगा. भाई कितना एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा. राइट. सी, अगर आपको ये समझ में नहीं आया ये कंडीशंस, आई विल टेल यू वेरी सिंपल एग्जांपल, बहुत सिंपल है, आपको जल्दी समझ में आएगा. सपोज मेरे को एक 11th क्लास स्टूडेंट का नॉलेज चेक करना है कि उसको केमिस्ट्री कितना आता है. राइट. सो व्हाट डू आई डू, कि अगर आपको केमिस्ट्री कितना समझ में आ रहा है चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, या तो ओरल क्वेश्चंस लूंगा या रिटन टेस्ट लूंगा. सपोज रिटन टेस्ट में कंडक्ट कर रहा हूं मैं आपको रिटन टेस्ट. अब रिटन टेस्ट में कंडक्ट करने से मेरे को आपका नॉलेज मालूम पड़ेगा, आपको केमिस्ट्री कितना समझ में आया. यस, बट प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस मेंटेन करूंगा. तो कंडीशन नंबर 1, आइसोलेटेड स्टेट में होना चाहिए. आपका एग्जाम आपके बाजू में 11th क्लास के बाजू में 12th क्लास वाला नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, 12th क्लास वाला 11th क्लास वाले को बोलेगा भाई तू आंसर ये लिख. इट मीन्स आई विल नॉट कम टू नो व्हाट इज योर ट्रू नॉलेज. इट मीन्स जब भी मैं आपको एग्जाम कंडक्ट करूं तो वो एग्जाम आइसोलेटेड स्टेट में मेंटेन होना चाहिए. तब क्या होता है कि एक पर्सन का इंफ्लुएंस दूसरे पर्सन में नहीं होगा. एंड गैसियस स्टेट, ये कंडीशन भी मेंटेन करना होगा. गैसियस स्टेट मतलब आपका एग्जाम में 11th भी बाजू में नहीं होना चाहिए, 11th के बाजू में 12th भी नहीं होना चाहिए, 11th के बाजू में 11th भी नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, एक दूसरे को आपस में डिस्कस करके आंसर लिखेंगे. तो इट मींस आइसोलेटेड स्टेट भी होना चाहिए, गैसियस स्टेट भी होना चाहिए. ग्राउंड स्टेट मतलब जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड है, कि आपको मैंने पहले 2 दिन पहले इन्फॉर्म किया कि भाई आपका एग्जाम कल होने वाला है, आप तैयार होकर आ जाओ, तो आपको एक्चुअली प्रिपेयर होकर आएंगे और आपका ट्रू नॉलेज क्या है वो मालूम पड़ेगा. मैं सडनली आते मैंने बोल दिया कि भाई एग्जाम ले लो आज, तो क्या होगा, आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, तो आपको एक्चुअली समझ में आया होगा तो भी वो भूल जाते हैं, बिकॉज यू नीड रिविजन. सो दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट यानी मोर स्टेबल स्टेट, जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे तब अगर मैं एग्जाम लूं तो आपको एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स कितना समझ में आया मालूम पड़ेगा. सो जब भी मैं एग्जाम लूं आपका, तब भी मैं ये कंडीशंस मेंटेन करना होता है, आइसोलेटेड, गैसियस एंड ग्राउंड स्टेट. समझ में आपको? Yes, that is a very simple example. So whenever you want to measure IP, you have to maintain these 3 conditions. अब इसका डिटेल डिस्कशन जाएंगे, टॉप टू बॉटम क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा. नोट्स, क्विकली नोट्स बना दीजिएगा. Yes. So we learnt about ionization enthalpy word. Now we will learn the next word, that is successive ionization enthalpies. So what is the meaning of that word? Successive ionization enthalpies. Successive IPs बोलते हैं, ionization potential. Means what? Amount of energy needed the amount of energy needed to remove further second, third, fourth, etc. electrons from atom is called as successive IP.
सो मीनिंग क्या होगा देखिएगा, सपोज m एटम है गैसियस स्टेट में, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल IP1। अब M प्लस जो बन गया है और M प्लस उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, तो क्या बनेगा इस बार M2 प्लस एंड दैट इज कॉल्ड एज IP2। एंड M2 प्लस में से M2 प्लस उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो उसको क्या मिल जाएगा, M3 प्लस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज IP3, दैट इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल मींस एनर्जी नीडेड टू रिमूव, second IP means energy needed to remove second electron, only second electron। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाले को फर्स्ट IP बोलते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाले को सेकंड IP बोलते हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाले को थर्ड IP बोलते हैं। अब इसमें कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, IP1, IP2 और IP3, दैट वी विल डिस्कस कंटिन्यूएशन। सो पहले यहां तक नोट कर लीजिएगा आप।